Let us begin with the previous year UPSC question from 2020. The question says that internet expansion has created a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values. Discuss. अब क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स 2020 में है, इट इज इवन लाइक मोर ट्रू टुडे. Internet expansion has definitely changed or altered our value system. Maybe today virality and popularity matters more than honor or quote or things like this. So, of course, the question was like this only. We will discuss it today. And in this series of videos, we will discuss ethics, integrity, and aptitude paper. We will map last 13 years previous year questions. We will try to derive some pattern from it and we will see कि वो क्वेश्चन कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो सकता है और मॉडर्न डे में हमारे अराउंड पिछले एक साल में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन सी हैपनिंग्स हैं, कौन सा कोई आइडिया है जो सर्कुलेट हुआ है जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है. वी विल डिस्कस दैट एज वेल. द ओनली रीजन इज कि जब कोई चीज आपने डिस्कस की होती है और जब आपने उसके ऊपर लिखा होता है तो एग्जाम में आप बेटर लिख के आते हो कंपेयर टू व्हेन यू हैड टू इनोवेट राइट देयर. राइट. Now, when it comes to ethics paper, many students think ethics is only about philosophical ideas or moral values. However, in UPSC, I think that ethics is primarily about decision making. Of course, there are going to be questions like what have you learned from preachings of Guru Nanak Dev Ji or learning from Mahatma Gandhi and all these things. पर उसमें भी मुझे लगता है कि while writing, if you can not write in lofty words but you can actually demonstrate some sort of ethics in practice in your life or in your decision making in your thought process. I think आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. उसका रीजन भी है यार. मॉडर्न डे में आप देखो, अगर आप स्पेशली जब आप सर्विसेज में चले जाते हो, so you are constantly placed in situations where efficiency, power, innovation, these things must be balanced with the ideas like accountability or fairness or human dignity. अब ऑन वन हैंड आई एम बीइंग गिवन टास्क कि भैया आपको ये पार्किंग बनानी है, हमने तो पास में एयरपोर्ट बनाना है या मेट्रो स्टेशन आना है. एट द सेम टाइम आई नीड टू कट ट्रीज. अब मेरे को मुश्किल लग रही है सिचुएशन. और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो हैं सर्विसेज में आपके सामने आती हैं जहां पर इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट टू टू क्रिएट दैट मच needed balance. Anyways, today's discussion will focus on ethics in modern life and technology in the light of technological evolution. Of course, this session is inspired by UPSC 2020 PYQ जहाँ पे वो बोल रहा है कि इंटरनेट एक्सपेंशन से जो है हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है. तो उसी पे स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, but I think before moving forward, I quickly wanted to give you a recap of your syllabus and the first phrase. So what I'll try to do is, over the course of next few videos, we will pick one phrase at a time and we will quickly discuss that. तो आपने देखा होगा कि जो आपका सिलेबस है उसका सबसे पहला फ्रेज क्या है? एसेंस ऑफ एथिक्स. अब एथिक्स का एसेंस क्या है? अब आपको उतना बेसिक सबको पता ही होगा कि एथिक्स इज समथिंग दैट डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट वी collectively take from the society or people around us. Morality है जो intrinsic है मेरे अंदर से आ रही है. Without getting into the difference between ethics and morality, for the scope of today's discussion, let's say ethics is the ability to choose right course of action when multiple choices are available. Now, most ethical dilemmas arise when two desirable values come into conflict. फॉर एग्जाम्पल अब टेक्नोलॉजी को ही देख लो. अब मैं ही पर्सनली फील करता हूँ कि अब अगर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं तो सीबीएल में बहुत बार ऐसा होता है कि आई कैन सी दैट आई कैन एम्प्लॉय पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट. अगर मैं उसको डिप्लॉय कर देता हूँ तो मेरे को डिफिकल्ट चॉइस भी आती है कि यार व्हाट विल माय टाइपिस्ट डू, व्हाट विल दैट वीडियो एडिटर डू. तो ऑफ कोर्स होता क्या है कि on one hand you have human employability, on the other hand you have to decide between incorporation of new technology. Technology offers efficiency but then again may compromise privacy. Economic growth, it generates wealth but may increase inequality. Unfortunately हमारी कंट्री तो मतलब पीक पर है inequality के. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट बट अनचेक्ड मिस इन्फॉर्मेशन से आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कितना हार्म होता है. So ethics is not about following rules or doing, ethics is not just about following the code of conduct. It is about making responsible choices. So a useful way to remember कि यार ethics है क्या, इसका essence क्या है कि
अगर टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, क्या टेक्नोलॉजी में एथिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो टेक्नोलॉजी विल टेल अस द लिमिट्स दैट व्हाट ऑल इज पॉसिबल, बट एथिक्स विल टेल अस व्हाट इज एक्सेप्टेबल। अब इसको यार आप ऐसे देखो कि जैसे यार एआई को ही लगा लो, क्या कुछ नहीं पॉसिबल उससे, बट क्वेश्चन आज ये नहीं है कि क्या कुछ हम उससे कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। चलो विल कम टू दैट शॉर्टली, बट लेट अस नाउ come back to the previous year question. The question was कि internet expansion has created a different set of cultural values. अब यार सबसे पहले तो हमें डायरेक्टिव को एड्रेस करना है। यूपीएससी आपसे एक बैलेंस मल्टी डायमेंशनल आंसर एक्सपेक्ट कर रही है, तो हमें ना तो ग्लोरीफाई करना इंटरनेट को, ना ही विलीफाई करना, कंप्लीटली रिजेक्ट करना कि भाई बस इंटरनेट आ गया और अब तो मोरालिटी नहीं रही, वो क्या समय होते थे पहले वाले। The examiner wants to know whether you understand that how digital culture is reshaping the social values. वो ये नहीं बोल रहा है कि कितना बेकार हो गई है या कितनी अच्छी हो गई है। टॉक अबाउट रीशेपिंग, तो आपके कीवर्ड्स जो होंगे इस आंसर में वो कैसे होंगे कि ग्लोबलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेसी, कंज्यूमरिज्म, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के वो आपसे कीवर्ड्स एक्सपेक्ट करेगा। वैल्यू जजमेंट नहीं वहां पर पास करने शुरू कर देने की बस पहले तो एक हमारी संस्कृति होती थी और इंटरनेट की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई है, या उसका ऑपोजिट भी नहीं करना। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लेकिन मेरे को एक गांधी जी ने भी लिखा हुआ है इसके बारे में, एक एक आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट कोट, बट एक आइडिया मेरे को याद आता है। गांधी जी सेज कि यार कीप द डोर्स ऑफ योर हाउस कीप द विंडोज ऑफ योर हाउस ओपन एंड कीप द डोर शट। मतलब क्या है, कोई जो आपका वैल्यू सिस्टम है जो वेरीफाइड है, अच्छा है, बेटर है, सुपीरियर है, अपने आइडियाज अपने ट्रेडिशंस में रूटेड रहना फिर अच्छी बात है। आपकी भी कोई इतने हजारों सालों की हिस्ट्री है तो आपने भी कुछ जाना होगा, बट एट द सेम टाइम टू लिव विद दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि जितने भी मोस्ट वेरीफाइड सुपीरियर आइडियाज है वो हमारे कल्चर के ही हैं, वो भी गलत है। सो लेट दी वेद, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है ना ऐसा वाला कि मे दी नॉलेज कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। वही गांधी जी भी बोल रहे हैं कि अपने घर की विंडोज ओपन रखो, मतलब अलाउ द न्यू आइडियाज टू कम। सो इस तरह का एक क्वेश्चन था। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप जो भी इसके ऊपर आंसर लिख रहे हो अपना, आप लिखकर हमें भेजिए। एनीवेज, अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक अच्छा आंसर अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वो पहले तो इस चीज को एक्नॉलेज करेगा कि इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। अगर आप देखोगे भी अपने अराउंड, पीपल टुडे हैव ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, दे हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे हैव ग्रेटर ग्लोबल कनेक्टिविटी। बट हुआ क्या है कि चैलेंज तो किया है, ग्लोबल कनेक्टिविटी ने हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को चैलेंज तो किया है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर we used to emphasize on collective identity, we used to emphasize on family bond, we used to emphasize on social conformity। डिजिटल कल्चर किस चीज पे एम्फसाइज करता है? इंडिविजुअल चॉइस, पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर। सिमिलरली डिलेड ग्रेटिफिकेशन, पेशेंस, ट्रेडिशनल जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो इन चीजों को ग्लोरीफाई करता था या फिर वैल्यू करता था। क्या चीज प्रमोट की जाती थी? सब्र का फल मीठा होता है। इंटरनेट के बाद में अब आप क्या चीज को हम वो करते हैं, प्रमोट करते हैं? यू ओनली लिव वंस। पहले क्या होता था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, अब क्या किया जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आई ऑल्सो नीड टू एंजॉय वट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड मी। तो सोशल मीडिया क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट वैलिडेशन। तो जो मेच्योर आंसर होगा ना वो इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली हैंडल करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि एक अच्छा कल्चर था जो हमारा था, एक बुरा कल्चर है जो इंटरनेट के बाद आया। वो एक सिंथेसिस करने की कोशिश करेगा, ना कि वैल्यू जजमेंट पास करने की। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, कांट दे एग्जिस्ट कोएग्जिस्ट? दे कैन, राइट? सो इसी पे हमने फोकस करना है। अब ये आइडिया है, इसके ऊपर आप अपना आंसर लिख के दिखाना। अब इसी क्वेश्चन से इंस्पायर होकर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि द क्वेश्चन आस्क अस टू डिस्कस द एथिकल चैलेंजेस क्रिएटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड ह्यूमन एफिशिएंसी but it has also created new ethical challenges related to privacy, manipulation, misinformation, and accountability. Discuss with suitable examples. तो अब जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो किस चीज पे बन रहा है कि यार मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको एक हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, एफिशिएंसी आई है, बट एक फ्लिप साइड भी है उसकी।
तो इसमें जो कीवर्ड आप देख पा रहे हो मैंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कौन से हैं? प्राइवेसी, मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी। तो अगर इस क्वेश्चन को हमने हैंडल करना हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे? सी टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, मतलब इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। Citizen can access services online, students can learn remotely, healthcare can reach to rural areas through telemedicine. But ethical concerns जो इमर्ज हुए हैं वो क्या है? पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है विदाउट कंसेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे नो अबाउट आवर प्रेफरेंसेस, आवर हैबिट्स, इवन आवर इमोशनल पैटर्न्स। डीप फेक टेक्नोलॉजीज को आप देख लो, दे कैन क्रिएट प्रिटी कन्विंसिंग फेक वीडियोस। अब फेक न्यूज जो है दे कैन स्प्रेड फास्टर देन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। हम देखते भी हैं, फ्रेजेस भी यूज होते हैं कि यार ये तो व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन है, ये तो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली algorithm may knowingly or unknowingly discriminate against certain groups। अगर आपका डेटा ही ऐसा वाला है, ट्रेनिंग डेटा ही जो है वो स्ट्रक्चरली बायसेस एग्जिस्ट करते हैं अगर उसमें, तो ऑफ कोर्स उससे फिर फर्दर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेशन होगी। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मस्ट बी accompanied by transparency, accountability and strong ethical safeguards. The goal is not to slow the innovation but to ensure रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। दिस इज द आइडिया, राइट? तो आई होप आप इसके ऊपर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड ह्यूमन एफिशिएंसी बट इट हैज आल्सो क्रिएटेड ethical challenges regarding privacy, manipulation, misinformation and accountability। तो आप आंसर लिखकर इसका हमें दिखाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our second question focuses on artificial intelligence and governance. The question is, the question in the age of artificial intelligence is not what technology can do। मैंने शुरू में भी ये फ्रेज इसलिए यूज किया था, क्वेश्चन बनाया था कि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट एआई और टेक्नोलॉजी कैन डू बट व्हाट शुड इट बी अलाउड टू डू। आपने देखा होगा माइथोस के अराउंड ये बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि शुड वी रियली लाइक थ्रो द डाइस एंड लेट इट बी, बट जो हो रहा है आप देख लेते हैं फिर क्या आता है, और शुड वी बी लिटिल कंसर्न एंड शुड वी बी इन द कंट्रोलिंग पोजीशन। तो एग्जामिन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब अगेन आपको यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को आंसर करते हो, यू मस्ट गो बियॉन्ड सिंपल डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिकली एनालाइज बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। ये जरूरी हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो क्वेश्चन का है वो ये है कि just because something is capable of doing great things does not legitimize it, does not mean that it should be allowed to do those great things। we have to measure कि भाई उन great things के negative externalities क्या हैं। just because AI can do something great does not automatically mean that it should be doing it। तो artificial intelligence जो है it can create or it can improve significantly as far as governance is concerned। गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई वेलफेयर बेनिफिशियरीज मोर एफिशिएंटली। एआई को यूज करो तो हो सकता है कि जो हम बोगस बेनिफिशियरी की प्रॉब्लम से सफर करते हैं उसको हम कर्टेल कर सकते हैं, फ्रॉड्स डिटेक्ट कर सकते हैं, डिजीज पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इनको हम ज्यादा अच्छे से फास्ट बना सकते हैं। बट अगेन जब एल्गोरिदम डिसीजन मेकर बन जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इमेजिन अ वेलफेयर बेनिफिशियरी बीइंग denied assistance because of a data mismatch। A human officer, if human officer is there, that person might understand the context and exercise compassion right there, that human decision making। But a automated system that will simply reject the application। Another concern is algorithm opacity। ये तो है ही है ना भाई। if citizens do not understand how decisions are made, human beings के केस में क्या है, चलो इन थ्योरी लगा लो, आप उससे लड़ोगे कि हाँ कोई ओपेसिटी नहीं है। कभी मैं आपको ना देयर इज दिस थिंकर ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी, कभी वो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे को ओपेसिटी से याद आया, बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस थिंग, सिटीजन्स को एटलीस्ट इन थ्योरी ये तो पता है ना कि यार हाउ डिसीजंस आर मेड, but they don't know how algorithms are made, right? So if citizens do not understand how decisions are made, accountability becomes extremely difficult। So therefore AI must remain transparent, auditable, it should be subjected to human oversight
So efficiency is important, but in the name of efficiency, justice cannot be thrown out of the window. Justice is even more important. So this is the idea. I'm giving you few keywords. I've given you the context of the question. हमें आ सकता है क्वेश्चन कि यार अगर एआई सब कुछ कर सकता है तो शुड इट बी अलाउड, माइथोस का आपको रेफरेंस आ सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड सॉरी, द थर्ड क्वेश्चन डील्स विद social media ethics. Question is something like कि social media has blurred the boundary between expression, influence, addiction and exploitation. You might have heard about this unfortunate case where a couple in South Korea got so occupied in their social media, uh, जो भी बोलो आप उसको एक्टिविटी, दैट दे forgot to feed their baby for 3 days or 4 days. बच्चे को खाना ही नहीं खिलाया और फिर बड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे. So in this context, कि social media has blurred the boundary between expression, influence, addiction, and exploitation. In this context, discuss the ethical responsibilities of citizens, content creator, and the state. Right? So yeah, social media has transformed communication more rapidly than any previous technology. मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो पुराने वाले राजा लोग होते थे उनके पास सोशल मीडिया होता, उन्होंने क्या जबरदस्त मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलानी थी. अभी वाले भी शायद चला रहे होंगे. बट बट या द वे इंफॉर्मेशन टुडे, द वे इट just flows very rapidly. So it has empowered citizens, of course, it has strengthened democratic participation, it has definitely enabled instant information sharing. एक सेकंड में सबको टैग करो, शेयर करो. However, it has created misinformation, digital addiction and manipulation. So the question requires us to examine responsibilities across different stakeholders. भाई किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो पहले तो अगर हम सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिटीजन मस्ट प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर. आप सबको सरकार पे नहीं डाल सकते. अगर से मैं अगर मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे कोई 5 रुपए का नोट भी देता है, 2 रुपए का नोट भी देता है, एक सिक्का भी दे दे 2 रुपए का, मैं उसको ऐसे से करके देख लेता हूँ. तो फॉर पीपल टू अज्यूम कि यार आम लोगों को तो पता नहीं, वो बस ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है. ऐसा नहीं करना चाहिए. उनको इस चीज की बस अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई ये करना होता है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है. So before forwarding a message, they should verify its authenticity. Of course, some state-sponsored instrument should also be there to the tools, or the platform-sponsored tools should also be there to ensure how they can verify. But content should be verified for its authenticity. Then content creators, they carry even greater responsibility because their influence affects thousands or millions of people. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो लेट इट बी. राइट, बट यू गॉट द आइडिया कि कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सिमिलरली मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, मैनिपुलेटिंग नैरेटिव्स हैं, सेंसेशनल कंटेंट है. यार जैसे मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ, हम सारा टाइम मीडिया को गाली निकालते हैं कि वो तो सोशल मीडिया जिसने बचा रखा है, वो सोशल मीडिया पे खबर होती है शेयर, अदरवाइज तो भाई जो हमारा मीडिया है वो तो गोदी मीडिया. आज आप एक काम करना, जितने भी आपके फेमस सोशल मीडिया वाले पर्सन हैं, आप उनका कंटेंट उठाओ और उसके सिर्फ 2 लिटमस टेस्ट निकालो कि यार ये कंटेंट बनाते हुए पर्सन ने या तो ये देखा होगा कि यार ये वायरल हो जाएगा, या ऑरा फार्मिंग हो रही होगी उसमें कि यार इट विल प्रोजेक्ट मी एज वाह क्या मैं खतरनाक बढ़िया उच्च कोटि का इंसान हूं, या ये हो रहा होगा, या फिर उसकी वायरलिटी हो रही होगी, या फिर वो उस चीज पे कंटेंट बनाएंगे जहां पर दे कैन जस्ट बोर्ड द ट्रेन. ये चीज ऑलरेडी खबरों में चल रही है, मैं भी आ जाता हूं तो चलो 2-4 हजार 5 हजार व्यूज तो आ ही जाएंगे. और फिर ये लोग आके बोलेंगे कि यार जो आपका रेगुलर मीडिया है वो तो बस टीआरपी के पीछे है. आप भी उसी के पीछे हो. अभी तो आपके पास 2-4 लाख फॉलोअर्स ही, यहाँ पे होने तो 2-4 मिलियन फॉलोअर. फिर आप देखना आप भी वही लाइन टो करोगे. अनफॉर्चुनेट है, पर इट इज व्हाट इट इज. राइट. सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स हैं, सेंसेशनल कंटेंट जो है उसको उसको ऐसे दिखाया जाता है, एंड देन इवेंचुअली इट इट डज सिग्निफिकेंट हार्म. तो स्टेट ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक इंडिविजुअल की है, कंटेंट क्रिएटर की है, फिर स्टेट की है. स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट मस्ट एड्रेस हार्मफुल कंटेंट. इट मस्ट, पहले तो टू स्टार्ट विद स्टेट शुड नॉट बी क्रिएटिंग हार्मफुल कंटेंट. राइट, स्टेट शुड नॉट बी क्रिएटिंग मैनिपुलेटिव कंटेंट. बट उसके बाद में while protecting constitutional freedoms,
स्टेट मस्ट एड्रेस हार्मफुल कंटेंट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। और फिर एक स्टेक होल्डर हमारे पास में आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो सिटीजन्स आ गए, कंटेंट क्रिएटर आ गए, स्टेट आ गई और प्लेटफॉर्म्स। द प्लेटफॉर्म्स शुड डिजाइन systems that encourage accountability rather than rewarding outrage and polarization. The overall answer, like lesson is simple, right? कि rights and freedoms in the digital world must be accompanied by responsibility. Ethics remain relevant not despite टेक्नोलॉजी बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तो होना ही चाहिए कि यार एथिक्स जो है वो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी तरह से हमने इस चीज को टैकल करना है कि एथिक्स है दे आर सर्विंग द कॉन्शियस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो हमने मॉडर्न लाइफ को विलीफाई नहीं करने लग जाना या उसकी गालियां नहीं निकालने लग जानी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसा हो गया, एआई में ऐसा हो गया, ऑब्जेक्टिवली आप उसको डील करोगे कि एथिक्स बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आई होप आप इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर आंसर लिखोगे और अपने अराउंड आप नजर रखोगे कि यार कौन सा ऐसा मॉडर्न फिनोमिना या पैटर्न या लाइफस्टाइल चेंज है जिसको वो एथिक्स के पेपर में पूछ सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम ओपन टू योर फीडबैक, डू राइट टू अस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।